Assalamualaikum everyone. Welcome to this video. So in this lecture we are going to start the topic of microbiology, and this topic is bacteriology. So in this chapter we are going to study that what is bacteria and what is the characteristics of this bacteria. So before we are going to start this lecture, I request to you to please subscribe to my channel, like my videos, and also press the bell icon in order to get all the notification of the videos which I have uploaded. So let's start this lecture. So in the first you are going to see what is bacteriology. So bacteriology is actually the study of bacteria. Okay, bacteria mean and logos mean study. So you are going to study this bacteria. So if we study the bacteria, these are the microscopic unicellular prokaryotic organism. You know very well about the characteristics of prokaryotes. So bacteria came under the branch of prokaryotes, and it is characterized by lack of membrane bounded organelles, and it has no nucleus in it and have no membrane bounded any type of organelle. And the bacteria are the very earliest form of the life, so the life is going to be start from this bacteria. So it is very most unicellular prokaryotes having simple associated and similar cells. So there is some brief history about the bacteria, so I am highlighting the important history of it, and then you have to learn it. So I have highlighted the important points out of it. So we are going to study the brief history that how the bacteria came to know us. So the bacteria was first the microscope was invented, and then an scientist which is the Royal Society of London, and Anton Leeuwenhoek. It first see a living microscope under the microscope, and he called them as animalcules. Then after that there was a Danish scientist which is Otto Frederick Muller, and he called these organelles as bacilli. Then after that there is C. Devane, and he called them as microscopic creatures and the bacteria. And after that the bacteria study is going to be evaluated. Now we are going to see cellular morphology of bacteria. So first they are going to define you what is cellular morphology. So cellular morphology is the general appearance of an individual cell as they are seen in the microscope. So आप कोई भी चीज़ अगर आप एक सेल माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं और वो सेल आपको किस तरह से नज़र आ रहा है, इस चीज़ को हम उस सेल की मॉर्फोलॉजी सेलुलर मॉर्फोलॉजी कहते हैं. जैसे अगर आप बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया की बहुत सी शेप्स आपको माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आएंगी. कुछ आपको कोकस की शेप में होंगे. कोकस होता है स्पेरिकल शेप. कुछ बेसिलस की शेप में यानी रॉड लाइक, कुछ स्पायरलम यानी कोमा लाइक या स्पाइरल उनके, कुछ फिलामेंटस बैक्टीरिया भी होते हैं. सो ये शेप के बेस पे बैक्टीरिया की सेलुलर मॉर्फोलॉजी की गई है. अब सबसे पहले बेसिलाई है, फिर उसके बाद कोकाई को हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या शेप आ जाती है. कोकाई के फर्दर कुछ जो है ना वो मॉर्फोलॉजी के बेस पे कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं और वो हम सब देखेंगे. यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बैक्टीरिया की जितनी भी शेप्स हैं उन सब की डायग्राम उन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है. सब हम लोग बैसिलस को देखते हैं. सो बेसिलस का ये आप यहाँ पर देख सकते हो. सबसे पहले मूलर एक साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि रोड लाइक जो शेप होती है हम उसको बेसिलस कहते हैं. वेरियस स्पीशीज़ है हमारी रोड शेप बैक्टीरिया की, सिलेंड्रिकल हैं और इनकी लेंथ कितनी है 20 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ है. शॉर्ट ये 0.2 माइक्रोमीटर के भी होते हैं. कुछ बेसिलस थे वो सिलेंडर लाइक थे और कुछ सिलेंड्रिकल लाइक थे. इस सिलेंड्रिकल और सिलेंडर लाइक इन दोनों की शेप्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है. तो उसकी एक एग्जांपल उन्होंने दी है, वही है यहाँ पर सेलमेंडर टाइफाई. टाइफाई ये एक बैक्टीरिया है, एग्जांपल है ये इसकी, और ये टाइफाइड का फीवर कॉज करता है. यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि किस तरह से ये आपको इस फीवर कॉज कर रहा है, और ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है. इसी तरह एजेंट ऑफ एंथ्रेक्स जो है, एंथ्रेक्स भी एक बीमारी है और उसका काजिंग एजेंट जो है वो भी हमारे पास बैसिलस एंथ्रेक्स, ये एक बैक्टीरिया है और ये रेक्टेंगुलर शेप्स का हो जाता है. ठीक है, तो सिलेंड्रिकल शेप थोड़ी रेक्टेंगुलर शेप की तरह हो जाती है. तो इसका मतलब क्या है कि बैसिलस एंथ्रेक्स जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का है. मोस्ट ऑफ द रोड्स
occur singly but most of arrange in long chains। अगर ये यही रोड शेप अगर लॉन्ग चेन में अरेंज हो तो हम उसको स्ट्रेप्टोबैसिलाई कहते हैं। स्ट्रेप्टो कवर जहाँ पर भी यूज़ होगा उसका मतलब क्या होगा, चेन्स है, ठीक है। सो ये बैसिलाई की कुछ शेप्स आ गई थी। अब मैं आपको बैसिलस की कुछ शेप्स दिखाती हूँ। इस पेज पे आप लोग आ जाएं। सो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि ये रोड शेप जो है ना बैसिलस आपको दिखाया, ये डिप्लो बैसिलाई है, यानी दो इकट्ठे आ गए हैं, ठीक है। ये पैरासाइड्स हैं, यानी इस तरह से वर्टिकल अरेंज है। ये स्ट्रेप्टोबैसिलस है। स्ट्रेप्टो हमने आपको कहा था कि चेन, जब भी ब्रॉड शेप बैक्टीरिया चेन की फॉर्म में आएंगे तो हम उसको स्ट्रेप्टोबैसिलाई कहेंगे। सो ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। टर्म्स में उनकी शेप के बेस पे डिफरेंस आता है। जब भी आप माइक्रोस्कोप के नीचे रोड शेप का बैक्टीरिया देखेंगे तो आप फ़ौरन उसे कहेंगे कि ये बैसिलाई है। नेक्स्ट आ जाता है कोकाई। कोकाई के वर्ड से भी इंडिकेट हो रहा है, ये कोकस होते हैं स्फेरिकल शेप बैक्टीरियम। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि जब भी आप कोई स्फेरिकल शेप बैक्टीरियम को देखेंगे आपने उसे कोकस कंसिडर करना है। ये टर्म डिराइव किया ग्रीक कोकस, इस वर्ड से डिराइव किया, मीनिंग बेरी, ठीक है। ये बहुत सारे अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिखाई हुई हैं। इसका डायमीटर, मतलब ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं। डायमीटर इनका इतने से इतने तक है, 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर। आल्सो दे आर इक्वली राउंड बट मे बी ओवल भी हो सकते हैं, ये आपको पता है। इलोंगेटेड भी थोड़े से हो सकते हैं। मोस्ट बैक्टीरियल स्पीशी आर कोकाई स्टे टुगेदर आफ्टर डिवीजन एंड टेक ऑन द सेलुलर अरेंजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब मैं आप लोगों को इसकी शेप्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर इधर आप लोग देख सकते हो कि ये कोकस की शेप है, ये डिप्लोकोकाई है, यानी दो कोकाई इकट्ठे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये इनकैप्सुलेटेड है। इनके ऊपर इस तरह का एक कैप्सूल इकट्ठा किया हुआ होता है जो इनको इकट्ठा रखता है, ठीक है। मैं अगर आप इस कैप्सूल को हाईलाइट करी, जबकि इनके ऊपर ये जो डिप्लोकोकस इनकैप्सुलेटेड, इनके ऊपर कोई इस तरह का कैप्सूल नहीं है। ये है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलो अगर आ जाएगा ना स्ट्रेप्टो तो उसका मतलब है चेन। यहाँ पर आप देख सकते हो ये चेन है। जब स्टेफाइलो का वर्ड आ जाता है ना, स्टेफाइलो होता है क्लस्टर लाइक, तो यहाँ पर आप पूरा गुच्छा देख सकते हैं कोकस का। सिलसिला जो होता है ये 8 जो है ना कोकस इसके अंदर होते हैं और टेट्राइड के अंदर 4 होते हैं। सिलसिला के अंदर 8 होते हैं। यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 और 4 इसकी बैक साइड पे हैं, तो वो 8 हो जाते हैं। जबकि टेट्राइड में सिर्फ 4 कोकस इस तरह से मिले हुए होंगे। नेक्स्ट जो शेप आ जाती है डेट इज़ डिप्लोकोकस। आपको पता है डिप्लोकोकस का क्या है कि अगर कोकाई एक पेयर की फॉर्म में अपेयर होते हैं तो उसको हम डिप्लोकोकस कहते हैं। और कुछ एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया की जो इसी फॉर्म में होती हैं, जैसे नर्सिया ग्लोरेनिया या नर्सिया मेनेंडेंसिस। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया की कि आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। क्या है, नर्सिरा है, दोनों ही नर्सिरा हैं। एक है गोनेरियो, एक है मेनेंजीडिटस टीडिस, ठीक है। फिर आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकाई। आपको पता है चेन की फॉर्म में होंगे और इनकी एग्जांपल्स आप लोगों को ये दिखाई हुई है। इन्वॉल्व इन स्ट्रेप्टोड के अंदर एक है एसमुल्स तो डिके में है, और ये डेयरी प्रोडक्ट्स यानी योगर्ट्स के अंदर एस लेटिस होता है, ठीक है। अब वही कह रहे हैं कि अरेंजमेंट अगर होगी 4 कोकाई के अंदर और एक स्क्वायर वो बनाएगा तो उसको हम टेट्राड कहते हैं। और सेरेसिना में 6 से 8 कोकाई जो है वो क्यूब की शेप में अरेंज होगी। एंड में स्टेफाइलोकोकस दिखाया हुआ है, उसको मैंने आप लोगों को बताया था कि ये रेंडमली जब डिवाइड होते हैं, जब कोकाई आपकी क्या होंगे रेंडमली डिवाइड होंगी तो इरेगुलर ग्रेप्स या क्लस्टर ऑफ सेल्स की फॉर्म में आ जाएंगे, उसको हम स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। इसकी एग्जांपल है स्टेफाइलो आरियस। आरियस जो है ये फूड पॉइजनिंग काज करता है। जब भी आपको फूड पॉइजनिंग या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम या कुछ स्किन इन्फेक्शंस जो हैं वो इसी बैक्टीरिया की वजह से कॉज होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि स्पाइरल शेप अब आ चुकी है। हमने कोकस और बैसिलस दोनों पढ़ लिया, अब हम लोग स्पाइरल पढ़ने वाले हैं। स्पाइरल की भी आगे 3 फॉर्म्स हैं। एक है विब्रियो, विब्रियो के नाम से भी आपको, एक है स्पाइरेला और एक है स्पाइरोशीट। अब हम इनको 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास है विब्रियो। विब्रियो कर्व्ड रोड की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, कर्व रोड की फॉर्म में, ठीक है। कर्व कोमास के साथ रिजेंबल, बिल्कुल कोमा की जिस तरह की शेप होती है बिल्कुल उस तरह से होंगे। और इसकी एग्जांपल आपने हर एक की जो है ना वो याद करते जाना है। मैं एग्जांपल को यहाँ पर पिंक हाइलाइटर से हाईलाइट कर रही हूँ। विब्रियो कोलराई,
काजिंग कोलरा, ठीक है। विब्रियो कॉलर है जिसका है उसके एंड में आ गया। विब्रियो का मतलब क्या है, विब्रियो शेप है, और कॉलरा का मतलब क्या है, ये कोलरा काज कर है, तो ये कोलरा काजिंग बैक्टीरिया। देन आते हैं स्पाइरेला। स्पाइरेला ये हेलिकली शेप्ड है, थिक होते हैं, रिजिड इनकी सेल वॉल है, फ्लैजिला भी है जो कि असेंड करता है उनके मूवमेंट के अंदर, और इनकी एग्जांपल है स्पाइरेलम वोल्टेनम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पाइरल शीट्स। ये भी स्पाइरल लाइक बैक्टीरिया है, ये थिक थे, ठीक है, स्पाइरला थिक था, ये थिन आ जाते हैं, थिन है। इनकी रिजिड सेल वॉल थी, इनकी फ्लेक्सिबल सेल वॉल होगी, और इनके अंदर फ्लैजिला था, इनके अंदर कोई फ्लैजिला नहीं होगा, इनको हम स्पाइरल शीट्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल भी एक हमें दी गई है, ट्रिपोनीमा प्लाडियम। ये स्पाइलिस काज करता है, स्पाइलिस एक इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो स्पायरोशीट एक बैक्टीरिया है जो कि इसका कॉज बनता है। सो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो है ना वो आपको क्या एक्सप्लेन की गई है, उन्होंने बताया गया है some bacteria have complex life cycles involving the production of starch and appendages, for example Cyanobacteria bacter, and some products elongated structures and bearing the reproductive spores। किसी के अंदर reproductive spores प्रोड्यूस होते हैं तो किसी के अंदर कोई appendages आ जाते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जनरली एक डिस्टेंसिव सेल की मॉर्फोलॉजी है जो कि जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब है साइज ऑफ बैक्टीरिया। हमने शेप सबकी देख ली हैं, सबको कौन सी बैक्टीरिया किस एग्जांपल में आता है हमने उसकी सारी एग्जांपल्स भी देख ली हैं। नेक्स्ट आ जाता है शेप। बैक्टीरिया की शेप किस तरह की है, साइज़ किस तरह का है। तो साइज़ की बेस पे आपको उनको पता है कि स्मॉल तो इनका साइज़ है ही, ये तो हम सबको पता है, और इनविजिबल है ह्यूमन आई से, हमें नहीं पता कि कहाँ है, हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही इसे देख सकते हैं, हमारी नेक्ड आई के अंदर इतनी रेजोल्यूशन पावर नहीं है कि वो इसे देख सके। दूसरा मोस्ट बैक्टीरिया हैव डायमीटर। अब डायमीटर कितना, पीछे हम ये सारे डायमीटर पढ़ के आए हैं, ठीक है, 0.5 से 1.1 माइक्रोमीटर ये डायमीटर हम पढ़ के आए हैं। अब वो बताएंगे कि कौन सा बैक्टीरिया सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, ठीक है ना। तो एस्केरिस कोलाई, इसको मैं डिफरेंट हाईलाइटर से हाईलाइट करती हूँ ताकि आप लोगों को पता लग सके। सो सबसे पहले तो साइज़ को सिंपली एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हमारे पास है इक्रो कोलाई। ये एक बैसिलस है जिसका एवरेज साइज़ इतना है, वाइड इतना है, लॉन्ग और लेंथ उसकी सारी चीज़ें लिखी हुई। सम बैक्टीरिया कैन बी इतने 100 माइक्रोमीटर भी लॉन्ग हो सकते हैं। पहले इतना था साइज़, अब इक्वली इस्रिया कोलाई यानी ई कोलाई भी आप इसको कह सकते हो, ये 1.1 से 1.5 तक है। लेंथ विड्थ सब कुछ उन्होंने दी है, और कुछ 100 माइक्रोमीटर तक भी लॉन्ग होते हैं। सब स्पायरोशीज जो हैं, ये वाले हैं, इनकी लेंथ तो 500 माइक्रोमीटर तक पहुंच जाती है, ठीक है ना। सो ये वेरी कर सकते हैं दो दे आर, लेकिन इतना साइज होने के बावजूद भी ये हमें नज़र नहीं आते। इनमें से कोई भी बैक्टीरिया, चाहे वो स्क्रोटोलाई हो या वो स्पायरोशीस वाले हों जिनकी 500 माइक्रोमीटर, में से कोई भी हमें नज़र नहीं आता क्योंकि बहुत स्मॉल है, एंड दे हैव टू मैग्नीफाई। इनको 100 से 200 टाइम आपको मैग्नीफाई करना पड़ता है, तब जाके आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ये नज़र आते हैं। ह्यूमन आई फिर जाके इनको देख सकती है। अब इम्पोर्टेंस टू द, ये मैं इसको भी हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, ये हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल साइज़। अब सेल के साइज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, बैक्टीरिया की साइज़ इतना हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अब आप लोग उसको देखते जाते हैं। पर हैज़ मोस्ट ऑब्वियस सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया इज सम एक्सेप्शनल एंड देयर स्मॉल साइज़। वो कह रहे हैं कि बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है कि उनका स्मॉल साइज़ होता है, जिसके इस तरह का हमने एवरेज साइज़ जो है वो मैंने आपको ऊपर बताया है। इसका सेल का वॉल्यूम भी अब वो बता रहे हैं आपको। साइज इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउ लार्ज सरफेस एरिया। अब साइज़ की इंपॉर्टेंस वो यहाँ से आ रही है क्योंकि साइज़ जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होगी, विच अलाउ फॉर द रैपिड अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। अब जितना ये सरफेस और वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रैपिड अलाउ करेगा अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ वेस्ट को, ठीक है। तो वो आगे यही चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं दोबारा उसको हाईलाइट नहीं कर रही, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करती जा रही हूँ। तो जितना ज़्यादा आपकी सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होगी, ठीक है, जाहिर बात है जब आप देखते हो कि किसी एक मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, उसमें से डिफ्यूजन ये ज़्यादा जल्दी होगी, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स का बाहर जाना ईजी हो जाएगा बनस्पत इसके कि आपके पास सरफेस एरिया बहुत कम है। आप इंटेस्टाइन की एग्जांपल ले सकते हैं।
आपको पता है कि इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविलाई विलाई प्रेजेंट होते हैं और वो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर भी बेशक इसका साइज़ इतना ज़्यादा स्मॉल है, बट हम कहते हैं कि इसके अंदर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इसके अंदर भी इस तरह के जो फोर्स हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं इसके सरफेस को, ताकि ये न्यूट्रिएंट्स का और वेस्ट का एक्सचेंज कर सके, उनकी डिफ्यूजन करवा सके। Across the cell membrane limits the rate at which microbial metabolism can occur, making the cell less evolutionarily fit. The reason of extinction of large cells is unknown, although it is specialized and increase in the cell volume is primarily shortage of access of nutrients. ठीक है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बस ये जो मैंने हाईलाइट किया पिंक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंस क्यों है सेल साइज की, क्योंकि सरफेस एरिया के साथ इसका कुछ रिलेशन है। अब है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया के जो सेल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको बैक्टीरिया की डायग्राम दिखा देती हूँ और फिर हम उसकी वन बाय वन हर एक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बैक्टीरिया की उन्होंने आपको पिक दिखाई है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया है आपके पास। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके बाहर कैप्सूल की कवरिंग है, फिर उसके बाद सेल वॉल है, अंदर इसका ये सारा जो फ्लूइड है ये साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स भी होते हैं इसके अंदर। ये जो बाहर आपको इस तरह के हेयर लाइक प्रोजेक्शन नज़र आ रहे हैं, इनको हम पिलाई कहते हैं। इसके अलावा ये जो फ्लैजिला ये डिफरेंट ये हेल्प करता है मूवमेंट के अंदर। न्यूक्लियाइड मटेरियल ऐसे डिस्पर्स हुआ हुआ है साइटोप्लाज्म में, कोई न्यूक्लियस की इन्वेलप नहीं है, साइटोप्लाज्म भी है बीच में, तो ये बैक्टीरिया का एक पूरा सेल आ गया। अब हमने इस सेल के अंदर जैसे कैप्सूल है, सेल वॉल है, वन बाय वन इन सारी स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है डिटेल से कि सेल वॉल अगर है तो वो किस चीज़ की बनी हुई है, क्या चीज़ है, तो इन सब चीज़ों को अब हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बैक्टीरिया का सेलुलर स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया डिस्पाइट्स ऑफ देयर अपीयरेंट सिंप्लिसिटी, कि उनकी बेशक बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, एंड कंटेन अ वेल डेवलप्ड सेलुलर स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी इनका एक सेलुलर स्ट्रक्चर है जिससे मैंने आप लोगों को दिखाया है। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे हैं तो हम इनका देख ही नहीं सकते या हम इनको पढ़ ही नहीं सकते, नहीं, फिर भी इनके अंदर एक वेल डेवलप पूरा स्ट्रक्चर है, इनके अंदर हर चीज़ प्रेजेंट है, इनकी रिप्रोडक्शन के लिए अलग ऑर्गन है, हर चीज़ इनके अंदर भी है, which is responsible for many of their unique biological properties। ठीक है, many structural features are unique to bacteria। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर हैं, यानी इतनी यूनिक स्ट्रक्चर्स हैं कि वो ह्यूमन में तक नहीं है, ठीक है। आर नॉट फाउंड इन यूकैरियोट। सर वो भी यही बात कर रहे हैं कि इतनी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो यूकैरियोट्स में नहीं है, बट इस प्रोकैरियोट बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। अब देखते हैं, बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी इज रिलेटिव टू द लार्ज ऑर्गन एंड ईज विद which it can be found among मैनिपुलेटेड एंड एक्सपेरिमेंटली। हम इसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इससे सेलुलर स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें हैं अब हम उनको स्टडी करते हैं, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपी। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है सेल वॉल, ठीक है। अब कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये जो सारे यहाँ तक आप लोगों को ये जो सारे स्ट्रक्चर्स ये दिखाए गए हैं, ये हैं आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। मैं इसको लिख देती हूँ और ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। अच्छा, कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के साथ साथ सेलुलर इन्वेलप भी होता है, ठीक है। सो ये क्या कौन से स्ट्रक्चर्स हैं एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं और ये इंटरनल, जबकि सेल वॉल जो है वो इसका सेलुलर इन्वेलप है। अच्छा, सेलुलर इन्वेलप में हम सेल मेम्ब्रेन को भी इसके अंदर ला सकते हैं, कैप्सूल या स्लाइम की कवरिंग जो इसके ऊपर होती है वो भी इसका सेलुलर इन्वेलप है, ठीक है ना। सो अब यहाँ पर आप देख एक्सटर्नल जो सेल वॉल के एक्सटर्नल जो सब्सटेंसेस हैं ना उनको हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स कहेंगे। जैसे पिलाई है वो बाहर है, फिमराई बाहर है, फ्लैजिला। अच्छा, मैं इनका डिफरेंस भी बताऊंगी, पिलाई, फिमराई और फ्लैजिला का डिफरेंस भी बताऊंगी। एस लेयर भी बाहर है, कैप्सूल और स्लाइम को उन्होंने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कंसिडर किया, बट आप उसको सेलुलर इन्वेलप में भी कंसिडर कर सकते हैं। इंटरनल कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गई, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी आप कह सकते हैं, साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। कुछ साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन्स होते हैं, इंक्लूजन्स वेस्ट मटेरियल को कहते हैं। राइबोसोम भी हैं, मीजोसोम्स हैं और न्यूक्लियर मटेरियल है जो कि बगैर किसी मेम्ब्रेन के ऐसे ही जो है वो पूरे सेल के अंदर फैला हुआ है। सो अब हम वन बाय वन सेल वॉल को स्टडी करेंगे और डिफरेंट इसकी फंक्शंस और इसकी कंपोजिशन को देखते हैं।
अच्छा, हम लोग आ चुके हैं सेल वॉल के ऊपर। सेल वॉल के अंदर आप लोग देख सकते हो कि बैक्टीरिया सेल वॉल प्रोवाइड एक्सटर्नल इंटीग्रिटी टू सेल। तो ये इसकी आप लोग कह सकते हो कि ट्रिसिस भी हो गई और इसकी सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं हम लोग कि ये सिग्निफिकेंस है कि ये सेल को उसका स्ट्रक्चर इंटीग्रल दे रही है, यानी ये रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया का ये शेप मेंटेन करने के लिए। अगर ये ना होती तो बैक्टीरिया इस शेप का ना हो पाता। ठीक है। दूसरा, इन प्रोकैरियोट्स प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज टू प्रोटेक्ट द सेल। ये प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं सेल को। ठीक है। कोई भी प्रेशर आता है, बाहर से कोई प्रेशर आ रहा है तो सेल वॉल ने ही इसको बचाना है। ठीक है। काज बाई मच हायर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स आ रही हैं। बैक्टीरिया सेल वॉल एक्ट डिफरेंटली फ्राम अदर क्योंकि प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस हैं, यानी इसकी सेल वॉल की कंपोजिशन भी डिफरेंट है। ठीक है। बाकी अगर हम प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अंदर आपको पता है कि सेल वॉल नहीं है। सो यूकैरियोट की प्लांट की सेल वॉल और बैक्टीरिया की सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट है। अब यहाँ पर इन्होंने पेप्टाइडोग्लाइकेन कहा है कि ये दो वर्ड से है। एक है पेप्टाइडो, पेप्टाइड किस वर्ड से निकला है? पेप्टाइड मीन पेप्टाइड लिंकेज, और पेप्टाइड लिंकेज किस में होती है? प्रोटीन्स में होती हैं। इस मीन क्या है? इसके अंदर क्या है? पेप्टाइड भी हैं, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स भी हैं, और ग्लाइकेन का वर्ड कहाँ से आता है? कार्बोहाइड्रेट से आता है। यानी ये अमाइनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स का कम्बो है। सो पेप्टाइडोग्लाइकेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजिडिटी ऑफ बैक्टीरिया सेल। इसने क्या करना है? बैक्टीरिया सेल को रिजिडिटी देनी है। डिटर्मिनेशन ऑफ शेप, शेप क्या होगी सेल की? वो बेसिलस शेप होगी, वो मतलब स्फेरिकल शेप होगी, वो विब्रियल शेप है, वो स्पाइरल शेप है, कौन सी शेप है वो डिसाइड करने वाला हमारा बैक्टीरिया का सेल वॉल है। रिलेटिवली पोरस है, आने जाने मटेरियल का इनफ्लो देती है। परमेबिलिटी बैरियर है, इसके अंदर बैरियर भी है, कुछ हर सब्सटेंस के अंदर बाहर नहीं आने देती। इसके अलावा कंटेन, बस ये चीज़ पेप्टाइडोग्लाइकेन के बारे में बताई गई है। अब टू टाइप्स है सेल वॉल की। ठीक है। सेल वॉल की बेस पे बल्कि हमने टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड किए हैं। ठीक है। सो यहाँ पर टू टाइप्स हैं सेल वॉल की, एक है ग्राम पॉजिटिव, एक है ग्राम नेगेटिव। अब हम पहले ग्राम, अच्छा इनको डिफ्रेंशिएट किए हैं कि ग्राम स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। और ग्राम स्टेनिंग को फर्स्ट टाइम डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट कौन सा था? आप सब लोगों को पता है कि सर हैंस क्रिस्टन थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक को डिस्कवर किया था, और उन्होंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आपस में डिफ्रेंशिएट करवाया था, इनको डिफरेंट कहा था। अब सबसे पहले हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तरफ आते हैं, फिर हम ग्राम नेगेटिव सेल की तरफ जाएंगे। तो ग्राम पॉजिटिव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसके अंदर थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर होगी। ठीक है। और जबकि जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल होगी उसके अंदर थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है, which is responsible for the retention of crystal violet dye during the gram staining. Its mean क्या है कि क्रिस्टल वायलेट डाई को अगर अपने अंदर रिस्टेन करेगा तो इसका मतलब क्या है? स्टेनिंग के बाद ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होगा वो क्रिस्टल जो वायलेट कलर है वो शो करेगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। और इन जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को आप माइक्रोस्कोप के नीचे स्टेन करके देखेंगे तो इनका क्या कलर आएगा? वेरी गुड, पिंक कलर आएगा। बैक्टीरिया विद डायनोकोकस ग्रुप है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। और ये आखिरी, ये कुछ एग्जांपल्स थी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। एक्टिनोबैक्टीरिया, फिर्मिक्यूटिस, और दूसरी आया है डायनोकोकस थर्मो। कोकस का वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या है? स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होगा। अब कंपोजिशन की तरफ हम आ जाते हैं, किस तरह की कंपोजिशन होगी। ये यहाँ पर भी एक डायग्राम के ज़रिए से आपको कंपोजिशन बताई हुई है। ये ग्राम नेगेटिव सेल की है कंपोजिशन, ये ग्राम पॉजिटिव की। अभी हम ग्राम पॉजिटिव पढ़े हैं तो अभी ग्राम पॉजिटिव को देखें। तो यहाँ पर ये जो अपर ब्लैक लेयर आप लोग देख सकते हो ये है पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी मोटी लेयर है। अब आ जाओ ग्राम नेगेटिव के ऊपर। ग्राम नेगेटिव के ऊपर ये जो दरमियान वाली लेयर है, ये जिसके ऊपर मैं हाईलाइटर को घुमा रही हूँ, ये दरमियान वाली लेयर जो है ये आपकी है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। अब आप रिलेटिवली दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो कि उनकी ये वाली पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर कितनी पतली है और ये वाली पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर कितनी ज़्यादा थिक नेचर की है। और इसके नीचे ये वाली जो लेयर आ जाती है ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है। CM का मतलब क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में क्या है?
पेप्टाइडोग्लाइकन के ऊपर एक और लेयर है, ये लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है। अब हम इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं, ठीक है। सो कंपोजिशन हमारे पास आ रही है, ये हमारे पास एग्जांपल थी। तो कंपोजिशन क्या है कि ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के अंदर एक पॉली अल्कोहल है। क्या वो है? पॉली अल्कोहल। पॉली मीन मैनी, अल्कोहल मीन अल्कोहल है, और वो पॉली अल्कोहल कौन सा है? टिकोनोइक एसिड, ठीक है। ये लिपिड्स के साथ लिंक करता है, और लिपिड्स के साथ लिंक करने के बाद हम इसको कहते हैं लिपोटिकोनोइक एसिड। कहाँ पर है? ये इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर है। बिकॉज जो लिपोपोइड बैक्टीरिया कोवलेंटली लिंक, इसके साथ लिंकेज है इसका लिपिड्स के साथ, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेप्टाइडोग्लाइकन टू द सेल मेम्ब्रेन। इसी वजह से जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कवर दिया हुआ है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे टिकोनोइक एसिड की, कि लिपोटिकोनोइक एसिड जो है वो आपके प्रेजेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में। अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है इस टिकोनोइक एसिड का, फिर ये क्यों प्रेजेंट है और ग्राम पॉजिटिव में क्यों प्रेजेंट है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि ग्राम नेगेटिव के अंदर ये टिकोनोइक एसिड जो पॉली अल्कोहल है ये प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। सो अब आप लोग देखें, the टिकोनोइक एसिड give the gram positive overall negative charge due to the presence of फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं इस टिकोनोइक एसिड के मोनोमर्स, यानी टिकोनोइक एसिड पॉली अल्कोहल है, यानी मैनी मॉलिक्यूल्स इसके बाउंडेड टुगेदर होते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं ना तो उनके अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं। तो ये क्या दे रहा है? ओवरऑल नेगेटिव चार्ज देने का रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ओवरऑल क्या दे रहा है? नेगेटिव चार्ज दे रहा है, क्योंकि इसके में क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स हैं। यहाँ ये डायग्राम कुछ बनाई हुई है, डायग्राम बहुत ही छोटी बनाई हुई है, तो मैं जूम करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियरली हर एक चीज़ जो है वो विजिबल हो सके। सो ये जो ऊपर वाली ये वाली डायग्राम आपको दिखाई हुई है, ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए, और ये वाली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। सो भी अब आप इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ इस पे देखें। सो यहाँ पर मैं और आप लोगों को अगर जूम करके दिखाऊं तो ये आप लोगों को क्या नज़र आ रही है? लिपिड बायलेयर, यानी ये सेल मेम्ब्रेन है आपकी पूरी, ठीक है। सो इसको तो आप लोग भूल जाएं, या मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि आप लोग जो है इसको भूल जाएं, और इसके ऊपर वाला जो सारा चीज़ है ना उसको आपने गौर से देखना है। सो मैं इसको हाईलाइट इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग इससे वो ना हो, ठीक है। ये अब ग्रीन कलर की आपकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन आप कह सकते हैं, या लिपिड बायलेयर, वो सारी मैंने आपको दिखा दी है। तो ग्रीन कलर की मैंने वो कर दी। अच्छा, ग्राम नेगेटिव के अंदर भी मैं इस ग्रीन कलर को हाईलाइट कर देती हूँ अभी से ही, ताकि आपको याद रहेगा कि जहाँ पर भी ग्रीन कलर मैंने ड्रॉ किया है वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सो ये तो आ गई आपकी सेल मेम्ब्रेन। अब आपको पता है कि इस जो आपकी सेल वॉल होगी वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही होगी, जाहिर बात है, सेल मेम्ब्रेन से नीचे से नहीं हो सकती। सो अब हम अब यही सेल वॉल के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। अब वो हम लोग देखेंगे। सो इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर को डिफरेंट देख सकते हो कि यहाँ पर एक ब्लैक ब्लैक कलर के कुछ इस तरह के ऊपर निकल रहे हैं, इस तरह की कुछ इस तरह की चीज़ें ऊपर निकल रही हैं, इनको हम कह रहे हैं टिकोनोइक एसिड। ये निकल रहे हैं यहाँ से, ये ग्रीन कलर की सेल मेम्ब्रेन है, उससे ऊपर वाला जो है वो आपका सेल वॉल है। अब ये सेल वॉल की ये स्ट्रक्चर किस तरह से बनी है? ये बनी है यहाँ से, ये वाला स्ट्रक्चर देखो उसके लिए आप। सो इसके अंदर क्या चीज़ है? एक है एन एसिटाइल न्यूरेमिक एसिड, इसको हम कहते हैं NaM, एन एसिटाइल न्यूरेमिक एसिड। दूसरा है एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन NaG। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके अंदर ये पिंक कलर में मैं शो कर रही हूँ, क्योंकि इसको हाईलाइट जब तक मैं नहीं करूँगी आप लोगों को क्लियरली ये विजिबल नहीं होगा। ये जो पिंक कलर के मैंने अभी हाईलाइट किए हैं ये क्या हैं? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइनेट, यानी NaG। ये NaG है। मैं इसको भी पिंक से हाईलाइट किया ना, अब मैं इसको ग्रीन से कर रही हूँ, ये मैंने ग्रीन से किया है, बल्कि मैं ब्लू से करती हूँ ताकि वो बिल्कुल क्लियरली ना डिफरेंस लगता है। सो ये जो न्यूरामिक एसिड है मैंने इसको ब्लू से कर दिया है, ठीक है। ये ब्लू वाला है, देख रहे हो मैं हाईलाइट किस तरह से कर रही हूँ। आगे ये इस तरह की पूरी चेंज है, पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू। सो ये इस तरह से आपस में बाउंडेड हुए हुए पार्ट्स हैं, और इनका क्या काम है? ये देखें, ये बॉन्डिंग होंगी, इनके अंदर कोवलेंट लिंकेजेस होंगी तो आपकी सेल वॉल बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कुछ गोल गोल आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं, कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह है, इस तरह है, और कुछ इस तरह है।
सो ये जो बिल्कुल वर्टिकल नज़र आ रहे हैं ना, ये हैं अमाइनो एसिड की साइड चेन्स, और जो इस तरह से नज़र आ रहे हैं इस तरह हॉरिजॉन्टल में, ये हैं पेप्टाइड की क्रॉस लिंकेजेस। और ये है न्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और न्यूरामिक एसिड, ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट की बैकबोन है। एक्चुअली ये आपके पास था स्ट्रक्चर पॉली पेप्टाइडोग्लाइकिन का। ये पेप्टाइडोग्लाइकिन है, और पेप्टाइडोग्लाइकिन दो चीज़ों से मिलकर बन रही है, एक ये एन एसिटाइल ग्लूकोसा न्यूरामिक एसिड और एक है एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। अब हम साथ ही ग्राम नेगेटिव को भी देख लेते हैं। ग्राम नेगेटिव को तो वैसे हमने नीचे पढ़ना है, बट मैं पहले ही आपको वो सारा कुछ बता रही हूँ। अब ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या है, अगेन इसके अंदर यहाँ पर दोबारा सेल मेम्ब्रेन, यानी आप कह सकते हो कि फास्फोलिपिड की लेयर आ गई है। ये सारी फास्फोलिपिड की लेयर है, ठीक है। और फास्फोलिपिड और उनकी लेयर्स के दरमियान में इस वाले पार्ट के अंदर ये जो पार्ट, बल्कि मैं पिंक से नहीं, इसको मैं ब्लू से हाईलाइट करती हूँ क्योंकि ब्लू क्लियरली विजिबल होता है। ये देखें, ये वाला पार्ट, ये जिसको मैंने ब्लू से हाईलाइट किया, ये जो ब्लू पार्ट है इसके अंदर यही ये स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर इसके इस वाले ब्लू पार्ट के अंदर है। और बाकी ग्रीन वाला पार्ट क्या है, सारा लिपिड बाइलेयर है। सो अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस आप सब लोगों को पता लग गया है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या चीज़ है, नीचे सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है, दरमियान में ये पॉली पेप्टाइडोग्लाइकिन का ये वाला स्ट्रक्चर है, उसके बाद दोबारा से लिपिड की लेयर है। यानी कि क्या है कि ये वाला स्ट्रक्चर दो लिपिड बाइलेयर के दरमियान में सैंडविच हुआ हुआ है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में। अब हम जी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अगर मैं बताऊं आप लोगों को, सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया unlike the gram positive bacteria it contain thin polysaccharides layer। यहाँ आप देख सकते हो कितनी थिन लेयर थी। तो ये मेन डिफरेंस आ जाता है। adjacent to the cytoplasmic membrane responsible for the inability to retain the crystal violet color, ये retain नहीं करता है। जिस ग्राम स्टेनिंग में इसका कलर क्या आता है, पिंक कलर आएगा। जिस भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, उसका स्टेन करेंगे तो उसकी स्टेनिंग में उसका कलर क्या आएगा, पिंक कलर आएगा। कंपोजिशन अब इसकी आ गई है। कंपोजिशन में आप लोग देख सकते हो कि पॉली पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा इसके अंदर एडिशनल एक आउटर मेम्ब्रेन बनती है जो कि फॉस्फोलिपिड भी आप कह सकते हैं, और लिपो पॉलीसेकेराइड्स भी आप इसको कह सकते हैं। ये एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, और इसका काम क्या है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज देती है अगेन, और इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ स्टेन की करने में। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, लिपिड ये फॉस्फोलिपिड, ये जो एक्स्ट्रा एक लिपिड लेयर आई है, इसका फंक्शन क्या है कि इसने क्या करना है, हाईली लार्जली इम्परमिएबल, ठीक है। ये कुछ आइंस को जाहिर बात है नहीं आने देती, लेकिन इसके अंदर कुछ चैनल्स भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ चैनल्स हैं। ये सब्सटेंसेस जो सिलेक्टिव सब्सटेंसेस हैं, जैसे आइंस को, शुगर्स को, अमाइनो एसिड्स को, इनको क्रॉस करने देते हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर डिफरेंस किया गया है। जैसे यहाँ सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखा तो यहाँ पर उन्होंने क्या थिक लेयर होती है, आप लोगों को पता है। अब थिक है लेकिन एक ही लेयर है, ठीक है, एक ही लेयर है लेकिन थिक है। साथ ही उसका उन्होंने जितनी भी थिकनेस है वो उसको बता दी कि इतने माइक्रोमीटर ये थिक है, जबकि ये थिन है और सिर्फ इतने गया थिक है, लेकिन दोनों की लेयर क्या है, सिंगल है। पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर सिंगल ही थी। शेप की बात करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव हमेशा रिजिड टाइप का शेप का होता है, जबकि ये जो ग्राम नेगेटिव है ये रिजिड भी है बट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी हो जाता है। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इसकी कॉम्प्लेक्स है, इसकी सिंपल है। यहाँ पर उन्होंने कुछ कंपोजिशन दी है सेल वॉल की, वहाँ पर डिटेल से ये कंपोजिशन नहीं थी, बट यहाँ पर परसेंटेज में हर एक कंपोजिशन दी हुई है। सो बेशक वहाँ से अगर आपने ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करना, लेकिन इस टेबल से लाजमी करें क्योंकि इस टेबल के अंदर हर एक चीज़ दी हुई है, ठीक है। सो वहाँ पर हमने नहीं पढ़ा था कि रिजिड है या क्या है, तो यहाँ हम लोग ये चीज़ पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हम लोगों ने पढ़ी, लिपिड की, इन सब की कंपोजिशन कितनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिपिड कम है, 1 से 4% है सिर्फ, यहाँ पर 12 से 11 से 12% है। इधर आप लोग देख पेप्टाइडोग्लाइकिन की परसेंटेज 80 तक पहुँच जाती है, ठीक है, 50% ड्राई वेट है, जबकि यहाँ पर सिर्फ 5 से 15 है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है, यानी एक सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में और उसके दरमियान में कोई स्पेस नहीं है,
जबकि इसके अंदर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसके अंदर स्पेस भी ज़्यादा होती है, प्रेजेंट होती है। लिपोपॉलीसेकेराइड आपको पता है वो लेयर ग्राम नेगेटिव में है, ग्राम पॉजिटिव में नहीं है, कि कोई कैसे ग्राम पॉजिटिव में है, ग्राम नेगेटिव में नहीं है। नेक्स्ट कुछ और जो है वो आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे स्पोर फॉर्मेशन, तो ग्राम पॉजिटिव में है, ग्राम नेगेटिव में नहीं है। लेटिक एक्टिविटी यानी वो इसके अंदर है, फॉर्म प्रोटोप्लास्ट या स्पाइरोब्लास्ट बनाते हैं। मैकेनिकल स्टेबिलिटी अगर देखें तो ग्राम पॉजिटिव की ज़्यादा है स्टेबिलिटी, इसकी कम है। रेजिस्टेंस क्या है, इसके अंदर मोर रेजिस्टेंस है, इसके अंदर मोर स्टेबिलिटी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के खिलाफ, और बेसिक डाई के खिलाफ ये मोर स्टेबल है, रेजिस्टेंस ये ज़्यादा है। ठीक है, बेसिक डाई क्योंकि पिंक कलर लाते हैं तो ये उसके खिलाफ ज़्यादा रेजिस्टेंस है, और ऑक्सीडाइजिंग डाई के खिलाफ ये ज़्यादा रेजिस्टेंस है। प्रोड्यूस टॉक्सिन में से कौन कर रहा है, तो ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ये भी यानी ये दोनों नहीं, ये एक्सोटॉक्सिन है, ये एंडोटॉक्सिन है, दोनों में डिफरेंस है। ये एक्सोटॉक्सिन है, ये एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। सम इफेक्ट ऑफ ऑटोमेटिक और सॉरी ऑस्मेटिक प्रेशर, मोर रेजिस्टेंस है, ये लेस रेजिस्टेंस है। अब है स्ट्रक्चर टू द एक्सटर्नल ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के बाहर क्या डिफरेंस है, तो हमने पढ़ा था सेल वॉल के बाहर फिम्ब्राई है, पिल्लाई है और फ्लैजिला, ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये पिल्लाई का स्ट्रक्चर था। अब हम लोग देखते हैं कि फिम्ब्राई क्या है। फिम्ब्राई आर द प्रोटीन ट्यूब्स। फिम्ब्राई क्या है, protein tube that are extended from out to the outer membrane. In many membranes of proteobacteria, they are generally short in length, छोटे हैं लेंथ में, higher membrane, entire bacteria जो है ना सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है इनका, फैसिलिटेट द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू द सरफेस। बैक्टीरिया ने किसी सरफेस पे अटैच होना है तो वो इसी फेब्राई के ज़रिए से अटैच होगा। फ्यू ऑर्गेनिज्म यूज फेम्ब्राई फॉर द मोर्टेलिटी में भी ये यूज़ हो रहे हैं, लेकिन कुछ शॉर्ट रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट है पिल्लाई। पिल्लाई की बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर वैसी है जैसे फेम्ब्राई की, जैसे ये दोनों है ना, तो ये फेम्ब्राई भी बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन ये उससे थोड़े से लॉन्गर हैं और कम तादाद में होते हैं। साइज आप लोग इनका देख सकते हैं। फंक्शन क्या है, ये बैक्टीरियल कंजुगेशन में गए हैं, यानी एड इन द बैक्टीरिया इन ग्रिपिंग द सरफेस। सम कुछ होते हैं नॉन सेक्स पिल्लाई, वो फिर यही सरफेस के ऊपर रहने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन कुछ होते हैं सेक्स पिल्लाई जो कि बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन साइकिल को स्टार्ट करने के लिए यूज़फुल होते हैं। यानी ये जो पिल्लाई है ये जाके दूसरे बैक्टीरिया के साथ बाइंड अप करेंगे और कुछ और बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस करने का वजह बनेंगे। नेक्स्ट है फ्लैजिला। फ्लैजिला मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल और मोस्ट बड़ा होता है ना ऑर्गेन बैक्टीरिया सेल में, तो इससे हम उसको मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कह रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि फ्लैजिला आप लोगों को पता है विप लाइक इनकी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोड्यूसिंग बीनीथ सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे ये प्रेजेंट होते हैं। रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया मोर्टेलिटी, ज़ायबता बैक्टीरिया इसी वजह से मूव करता है। 15 से 20 माइक्रोमीटर लॉन्ग की लेंथ बताई हुई है। कंपोजिशन देखें तो ये होलो फिलामेंट्स है, लॉन्ग है, रिजिड है, लेकिन अंदर से होलो हैं। प्रोटीन के सब यूनिट्स आप इन्हें कह सकते हैं। प्रोटीन का सब यूनिट फ्लैजिन इनके अंदर होता है। कॉमन फॉर्म जो है, अच्छा इसके कुछ वो दिए हुए हैं, बैक्टीरिया को हम डिफरेंस करते हैं फ्लैजिला की प्रेजेंस पर भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहला है मोनोट्राइकस, दूसरा है पेरिट्राइकस, लोफोट्राइकस और फिर एम्फीट्राइकस। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। मोनोट्राइकस, मोनो मीन वन, ठीक है। So they have one flagellum, it is located at the one end, it's said to be polar flagellum भी हम इन्हें कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ही जगह पे है। पेरिट्राइकस का मतलब क्या है, मल्टीपल फ्लैजिला, बहुत सारी लोकेशंस पे हो सकती हैं। ठीक है, फिर है लोफोट्राइकस, एट द टफ्ट ऑफ प्रेजेंट एट द वॉल पोल, यानी एक ही ये है लोफोट्राइकस, एक ही पोल के ऊपर सारा टफ्ट प्रेजेंट है। फिर है एम्फीट्राइकस, एम्फी का मतलब क्या, बोथ साइड पे, यानी एक ही सिंगल फ्लैजिला एट ईच पोल। ये है एम्फीट्राइकस, एक ही फ्लैजिला है लेकिन दोनों पोल्स पे, एट ईच पोल, दोनों पोल्स पे एक ही होगा। और पेरिट्राइकस की ये वाली एग्जांपल है कि पूरे सेवरल लोकेशंस पे इतने सारे जो है वो फ्लैजिला आ जाते हैं। तो मोनोट्राइकस है, पेरिट्राइकस, लोफोट्राइकस, यानी एक ही के ऊपर टफ्ट है पूरा अटैच। फिर एम्फीट्राइकस में क्या है कि एक ही है लेकिन दोनों तरफ है। ये हो गई फ्लैजिला और कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो कि सेल वॉल के बाहर थे।
ठीक है। अब कुछ और भी स्ट्रक्चर्स थे, जैसे एस लेयर थी, कैप्सूल थे और स्लाइम वगैरह, उन्होंने उनको भी सेल के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो है वो कंसिडर किया था। अब हम उनको देख लेते हैं। जो सेल वॉल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैं वो भी इस वीडियो में पढ़ाऊँगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम लोग यहाँ तक डिस्कवर करेंगे, ठीक है। सो एस लेयर क्या है? एस लेयर जो है ये सेल की सरफेस पे एक प्रोटीन की लेयर है। एस लेयर क्या है? सेल की सरफेस पे एक प्रोटीन लेयर है जो कि मैनी बैक्टीरियाज के अंदर होती है, सम आर्चिया में भी होती है, एंड इट सर्व एज द सेल वॉल। बिल्कुल सेल वॉल की तरह काम करती है। 2 डायमेंशन रेस हैं इसकी, प्रोटीन दो 2D हैं और रेस ऑफ प्रोटीन है, और जो इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म की अपीयरेंस है, सिमेट्री है बिटवीन द स्पीशीज। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन इसका अननोन है, लेकिन इसको सजेस्ट ये किया गया है कि ये पार्शियल परमेबिलिटी बैरियर है लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए, बहुत लार्ज मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देती ये एस लेयर, ठीक है। नेक्स्ट है कैप्सूल। कैप्सूल जो है आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है एक विस्कस सब्सटेंस से अपने आप को सराउंड करके रखता है। ये कवरिंग लेयर और एक इन्वेलप उसके गिर्द बन जाता है। इस कवरिंग को हम उसको स्लाइम भी कहते हैं और उसको कैप्सूल भी कहते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो कैप्सूल है ये बैक्टीरिया और मैन, हमारे ह्यूमन के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल है? बैक्टीरिया के लिए ये एक तो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। मैं आल्सो सर्व एज अ रिजर्वायर वो फूड, जाहिर बात है फूड को बाहर रखने और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये भी ये काम करवा रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल इन सम बैक्टीरिया विच कॉज द डिजीज, लेकिन डिजीज भी काज कर सकते हैं। द कंप्लीट लॉस ऑफ कैप्सूल में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ वायरलेंस। Capsulated bacteria is responsible for the development of contained nuclei in such as slime in industrial process. तो अब हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ये डेवलप करते हैं कंटेन न्यूज़ी और सच एज स्लाइम इन सम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, ये कुछ सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करने में भी रोल प्ले करते हैं। सो ये थी सिग्निफिकेंस कैप्सूल की और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की। हम लोगों ने जो बैक्टीरिया के सेलुलर स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया है और उसके कौन से इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं ये बस रहती हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स सेलुलर इन्वेलप जो है वो हमने डिस्कस करनी है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिस्कवर करना है। और लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे अगले लेक्चर में।